Okay, so in this video we will be discussing specifically about breast cancer. So for breast cancer, there are few risk factors that we need to know. There are two types: modifiable risk factors and then non-modifiable risk factors. Modifiable ones are those which can be changed eventually. सबसे पहले इसमें आता है obesity, which is when BMI is going to be higher than 30. Then there's going to be parity. So there's increased risk in women who are nulliparous or they've had their first pregnancy after the age of 35. Breastfeeding acts as a protective factor. Then age at which they at first childbirth, अगर less than 20 होगी, less risk factors होंगे. Above 35 there are going to be more risk factors. Use of hormone replacement therapy, of course it is going to increase the risk. Why? Because इसमें unopposed आपके पास estrogen exposure होता है, tobacco use हो सकता है, alcohol consumption हो सकती है, and then radiation exposure. For non-modifiable risk factors, of course, with age it is going to increase. In women it's going to be higher, ethnicity-wise, American white, African Americans, and then family history is also very important because there are genes which are associated with cancer, which is going to be BRCA genes या BRCA genes also इनको कहते हैं. Genetic predisposition, early menarche and late menopause. This means कि जो exposure to estrogen है वो ज़्यादा हो गया. And high risk breast lesions, for example proliferative conditions without atypia, complex fibroadenoma, papillomatosis, proliferative disease with atypia, lobular carcinoma in situ. So they've given us diseases जो हमारे पास eventually cancer की तरफ lead on कर सकती हैं. Now there are actually few types of cancer. Luminal type A. In this cancer जो आपके पास cancer होता है उस पर आपके पास estrogen या फिर progesterone के receptors present होते हैं, but HER2 के receptors नहीं होते. Ki-67 हमें बताता है proliferative index कि कितनी जल्दी proliferate करते हैं. तो ल्यूमिनल A का proliferative index कम होगा, ल्यूमिनल B का ज़्यादा होगा, एंड इसके भी रिसेप्टर्स दोनों ER या PR पॉजिटिव होंगे. सो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इनकी proliferation रेट का है. ल्यूमिनल B की proliferation रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है. फिर आ जाता है बेजल टाइप, ट्रिपल नेगेटिव, ना ER पॉजिटिव है, ना PR पॉजिटिव है और ना ही HER2 पॉजिटिव है, बट इनका Ki-67 काफ़ी हाई होता है. फिर HER2 इनरिच, मतलब इन पे HER2 के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, विच मीन्स कि Ki-67 इनका Ki-67 भी हाई होता है. Ki-67 किस किस का हाई था? इनका HER2, बेजल एंड ल्यूमिनल का था. देन क्लॉडिन लो, विच इज़ नेगेटिव. यू डू नॉट नीड टू नो एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज मेजरली आपके पास इन टाइप से क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ आ जाती है विच इज़ गोइंग टू बी द पैथोलॉजी ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. अब पैथोलॉजी ऑफ जो ब्रेस्ट कैंसर है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर को ना हमने डिफ़ाइन कर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ के दो तरह कर सकते हैं, या तो वो डक्ट में हो सकते हैं या वो लॉब्यूल के अंदर हो सकते हैं. अगर तो वो कन्फाइंड है एपिथेलियम तक, दिस मीन्स कि इट इज़ गोइंग टू बी कार्सिनोमा इन सिटू एंड द कैंसर सेल्स हैवंट ब्रीच्ड एंड हैवंट बेसिकली पास थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बट तो इनको बाय द वे इनको क्या कहते हैं, या तो हम कहेंगे डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू या फिर लॉबुलर कार्सिनोमा इन सिटू. अगर ये हमारे पास ब्रीच कर जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन को, तो इट इज़ गोइंग टू बी डक्टल कार्सिनोमा एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी लॉबुलर कार्सिनोमा. अब हमारे पास एक होती है स्कोरिंग सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ब्लूम रिचर्डसन स्कोरिंग सिस्टम. अभी स्कोरिंग सिस्टम में हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं 1, 2 एंड 3 पे. अब ग्रेड 1 में स्कोर जो होता है इट इज़ बिटवीन 3 to 5, देन इसका होगा 6 to 7 एंड इसका होता है 8 to 9. अभी स्कोरिंग हम किस बेसिस पे करते हैं? हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं. वो तीन चीज़ें क्या होती हैं? एक हमारे पास परसेंटेज ऑफ ट्यूमर सेल्स प्रेजेंट इन द कैंसर, सेकेंड इज़ गोइंग टू बी प्लेयोमॉर्फिज्म, third is going to be, this is basically nuclear pleomorphism, and third is going to be size and number of mitosis, size and number of mitosis. So this is called as Bloom-Richardson scoring system for the cancer. उसके बाद हमारे पास आगे क्या आ जाता है? ये भी हमने बाकी सारे कैंसर्स की टाइप देख ली. अब हमने इसकी करनी है स्प्रेड के बारे में बात. अब स्प्रेड के बारे में दिस गोइंग टू बी लोकल, lymphatic and third is going to be hematogenous. अब लोकल वाले में क्या होता है कि it is going to involve the adjacent structure. So breast is present on pectoralis major and it is going to invade the adjacent structure, जिसमें हमारे पास pec major आ जाएगा. फिर उसके बाद it could also involve हमारे पास serratus anterior and chest wall. So pec major, serratus anterior and chest wall.
व्हाट हैपन्स इज़ दैट कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं ना लोकल इन्वेजन में, इट रिलीज ग्रोथ फैक्टर्स विच कुड बी वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. सो व्हाट दे डू इज़ कि हमारे पास फिब्रोब्लास्ट सेल्स पे एक्ट करते हैं इन दिस सराउंडिंग ऑफ द ब्रेस्ट जो हमारे पास कैंसर होता है, which is going to cause infiltration and also shortening of the ligament of Cooper, which is basically attached to the skin of the breast alongside with the stroma of the breast itself. तो वो हमारे पास content of breast और breast की skin के साथ होता है अटैच, विच इज़ द लिगामेंट ऑफ कूपर. इसकी शॉर्टनिंग हो जाती है बिकॉज हमारे पास फिब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन हो जाएगी. उसकी वजह से क्या होगा, स्किन के अंदर पकरिंग इफेक्ट होगा. स्किन इज़ गोइंग टू बी pulled inwards. ठीक है, it is going to be pulled inwards and it will give to a sign of dimpling sign. Alongside with that puckering sign भी कह सकते हैं, and could also lead to nipple retraction which is fibrosis within the duct or around the duct as well. Now we are going to discuss the lymphatic drainage. अब lymphatic drainage के अंदर let me just erase this all. Lymphatic drainage में क्या होता है कि हमारे पास mainly we have talked about how breast actually drains into 85% it's going to be draining into axillary lymph node and 15% is going to be draining into intermammary lymph nodes. So mainly you're going to be seeing your axillary lymph nodes getting metastasized. अब contralaterally कैसे होता है? Contralaterally इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल मीडियल पोर्शन ऑफ द ब्रेस्ट में कैंसर था, ये इंटरमेमरी लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगे. सो देर गना बी इंटरकनेक्टेड विद द कॉन्ट्रालैटरल. यहाँ पे इंटरमेमरी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होंगे. देर गना स्प्रेड द लिम्फ टू द कॉन्ट्रालैटरल साइड ऑफ इंटरमेमरी लिम्फ नोड्स. थ्रू इंटरमेमरी लिम्फ नोड्स देर गना बी गोइंग टू द अदर ब्रेस्ट एंड देन फ्रॉम अदर ब्रेस्ट इट्स गना गो टू द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स. सो यू हैव योर एक्सिलर हियर, ब्रेस्ट हियर, इंटरमेमरी लिम्फ नोड्स हियर एंड देन द एक्सिलर हेयर. कैंसर अगर इधर था, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर कहीं पड़ा हुआ था कैंसर या मीडियल पोर्शन में कैंसर पड़ा हुआ था, वो इंटरमेमरी लिम्फ नोड्स को इन्वेट करेगा. वो कॉन्ट्रालैटरल साइड को करेंगे, कॉन्ट्रालैटरल से ब्रेस्ट में जाएंगे, ब्रेस्ट से एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाएंगे. कॉन्ट्रालैटरली भी हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है हेमाटोजेनस स्प्रेड. हेमाटोजेनस स्प्रेड में क्या होगा, थ्रू ब्लड हमारे पास वो जाते हैं ब्रेन, बोन्स, लिवर एंड लंग्स. तो हमने इसको BL से याद किया था, ब्रेन, बोन्स, लंग्स एंड लिवर. मेनली जो बोन्स में सबसे पहले जिस जगह को वो अफेक्ट करेगा दैट इज़ गोइंग टू बी द lumbar vertebra. So lumbar vertebra is going to be getting affected. After that it is going to be the neck of femur, alongside with that thoracic vertebra, ribs and also skull. क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वाइज अगर हम देखें तो कैंसर किस तरह प्रेजेंट करता है. सो इफ़ आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कैंसर, वो हमारे पास सबसे पहले क्या प्रेजेंट करेगा, एज अ लम्प प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी अ वेरी डिस्क्रीट लम्प. oh my god, the spelling aren't right. Discrete lump. Then alongside with that, mainly कहाँ पे नज़र आएगा, the upper outer quadrant. For example, this is the upper outer quadrant. Here you're going to be seeing 50% of the cancer, and that's going to be arising from the terminal duct of lobular unit. उसके अलावा प्यूडो ऑरेंज कैन बी सीन. प्यूडो ऑरेंज इज़ व्हेन हमारे पास जो सबक्यूटेनियस लिम्फेटिक्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वेड हो जाते हैं कैंसर सेल से. फिर उसके बाद there is going to be ulceration, there is going to be discharge. It can be either bloody discharge or even serous discharge. उसके बाद निपल रिट्रैक्शन भी दिख सकती है हमें. निपल रिट्रैक्शन वाई, बिकॉज हमारे पास ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ हुए, फिब्रोब्लास्ट सेल्स उससे एक्टिवेट होंगे, एंड फिब्रोब्लास्ट सेल्स जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो वो हमारे पास विद इन द डक्ट या फिर सराउंडिंग ऑफ द डक्ट में क्या कहेंगे, कोलेजन की डेपोजिशन करेंगे. देयर इज़ ऑल्सो अ टर्म कॉल्ड कैंसर cancer encurase. It's basically when the cancer of the skin has involved and infiltrated the skin of breast, the chest, upper limb and abdomen. तो मेनली हमारे पास कहते हैं, हम कहते हैं कैंसर एनक्यूरेस व्हेन द कैंसर इटसेल्फ हैज इन्वॉल्व्ड द स्किन ऑफ ब्रेस्ट, अपर लिम्ब, चेस्ट एंड द एब्डोमेन. नाउ फॉर द स्टेजिंग ऑफ द कैंसर. स्टेजिंग ऑफ द कैंसर के लिए हम वो कहते हैं बेसिक जो हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं, TNM स्कोरिंग कहते हैं. TNM स्कोरिंग में सबसे पहले वी गोना बी टॉकिंग अबाउट इधर हमारे पास क्या होगा, TIS, TI1, TI2, T3 एंड T4.
This means carcinoma in situ. This means it is going to be less than 2 centimeter in size. It is going to be 2 to 5 centimeter in size, more than 5 centimeter in size. और इसने हमारे पास इन्वॉल्व कर लिए हैं सराउंडिंग चेस्ट स्ट्रक्चर्स को, ठीक है, जो हमारे पास सराउंडिंग एरियाज होते हैं, तो वो T4 हो गया। अब आपके पास जो होती है N की, जो लिम्फ नोड्स की होती है, कि नो लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। N1 इज़ गोइंग टू बी कि आपके पास स्पीलैटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो गया है। N2 is going to be, this is by the way, N1 is going to be mobile lymph node, fixed lymph node. N2 is going to be fixed lateral lymph node. N3 is going to be when lateral internal memory lymph node is involved, which means कि eventually बाद में हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल साइड पे मूव कर ही जाएगा। फिर अगर हमने एम की स्कोरिंग देखनी है विच इज़ मैथ्स, तो इसका मतलब होता है नो मैथ्स। M1 का मतलब होता है कि यू हैव सीन द डिस्टेंट मैथ्स विच विल बी इंक्लूडिंग द सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड्स। सो फॉर द स्टेजिंग पर्पजेज़ अगर हमने इसको अब स्टेज करना है कि हमने स्टेज कैसे करना है, स्टेज 0 का मतलब है कि आपके पास वो कार्सिनोमा इन सिटू था, कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं था और कोई मेट्स नहीं थे। स्टेज 1 में वो आपके पास T1 था, विच मीन्स के लेस दैन 2 सेंटीमीटर था, प्लस आपके पास N0 ही होगा और M0 ही होगा। तो इन दोनों में N0 और M0 दोनों ही होंगे, मतलब कि आपके पास ना लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए ना मेट्स हुए। फिर 2 वाली स्टेज में क्या होता है कि हमारे पास T1 भी हो सकता है, T2 भी हो सकता है, T3 भी हो सकता है, और फिर आपके पास इसमें N1 भी हो सकता है और N0 भी हो सकता है और N1 भी हो सकता है, और आपके पास इसमें मेनली M0 ही होगा। तो मेनली चेंज क्या होता है इसमें कि आपके पास साइज़ जो होता है वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी जा सकता है। तो आपके पास 2 से लेकर 5 सेंटीमीटर की सारी रेंजेस हैं उसकी। और क्या हो सकता है, आपके पास लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है स्पीलैटरल मोबाइल। अब स्टेज 3 में क्या होगा कि आपके पास T3 T4 जाएगा। फॉर 3 इट इज़ गोइंग टू बी ईदर T3 एंड T4 and there is going to be no lymph node involvement and no mets involvement. But stage 4 में it is going to be कोई भी T stage हो सकती है, but lymph node भी मतलब involve हो सकते हैं, नहीं हो सकते, but आपके पास mets present होंगे, ठीक है। So this was your staging and stage 4 is the one जिसमें basically metastasize हो सकता है। So हम overall इसको फटाफट देख लेते हैं for the staging purposes। TIS is carcinoma in situ, T1 is going to be less than 2 centimeters, T2 is 2 to 5, 3 is going to be more than 5, और T4 involves the chest and the surrounding structures. N0 no lymph node, N1 is going to be स्पीलैटरल साइड पे आपके पास मोबाइल एक पैल्पेबल लिम्फ नोड होगा। N2 का मतलब है उसी स्पीलैटरल साइड पे वो आपके पास फिक्स्ड हो गया लिम्फ नोड। अगर वो इंटर मेमरी लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व करेगा तो वो आपके पास N3 आ जाता है और मैथ्स का नहीं होगा। इन दिस स्टेजिंग यू कैन सी इट फ्रॉम बुक, इधर डोगर और बेले, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज़।